one more doctor with us, Dr. Manoj Naik, who comes from Ramamani Iyengar Institute of Yoga, Pune. He would share his views with us. The topic is oneness and holistic health. So there is unity in diversity. So there are so many yogic streams, but all have come together. इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल वननेस का क्या हो सकता है? The late yogi Padma Vibhushan B.K.S. Iyengar had given an analogy कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, if you see that there is a North Indian school and there is a Carnatic school, so there are different schools. So similarly, a different school becomes a parampara. So though yoga is one, we have so many paramparas which have been brought together on a single platform by Dr. Basava Reddy. And this is an example of oneness, unity in diversity. Diversity does not mean difference. Diversity does not mean quarrel. That is anti-yogic state. So this platform, I would say, is an example of unity in diversity. Secondly, this program is a curtain raiser for International Yoga Day. If there is a curtain, what will happen? एक पर्दा है और वो पर्दा उठाया. So you see the person sitting on the stage. You see certainly. But yoga is a curtain raiser, but वो curtain ऊपर उठता ही नहीं. If you lift that curtain of ignorance and ego, then the mind, जो मन बाहर जाता है, भोग की तरफ जाता है, भोगिक माइंड रहता है, वो अपवर्गार्थ हो जाता है. And that goes and gravitates towards the soul. So तुम्हारे अज्ञान का और अहंकार का पर्दा उठाया तुमने, तो तुमको आत्मदर्शन हो जाता है. So in a way, practice of yoga has to be a curtain raiser. So this curtain raiser will give us an idea of what will be on the next yoga day. But individually, our practice should be that it lifts the veil of ignorance and we see the soul. Now in brief about holistic health, why do you need health? First of all, health या स्वास्थ्य है वो खरीद नहीं सकते. Commonly we get patients, कि हम एक्सरसाइज करते हैं, डायबिटीज़ है, कुछ प्रॉब्लम, हाँ डॉक्टर हम जिम में एडमिशन लिया है. मैंने कहा उससे, तुमने जिम में एडमिशन लिया है, ये तुम्हारे पैसे की ताकत बोल रही है. सो तुमको अगर कुछ करना है तो यू रिक्वायर ए विल पावर. यू डोंट नीड मनी टू टेक दैट एडमिशन. So for yoga, you require a willpower. So what is health? What is holistic health? In brief, I will mention. Now, before considering health, the first sutra of Patanjali Yoga Sutra, which everyone should know, he begins his discourse with saying, Atha Yoga Anushasanam. Yoga is a self-enforced discipline. I am practicing yoga not because someone else is forcing me. Parents forcing their children, study, study, study. रास्ते पे जाओ, आप indiscipline दिखता है क्या ट्रैफिक में? 3-seaters, drunken driving, rash driving, no entry. At every level you see that there is an indiscipline. So if there is an indiscipline, what does the society do? They appoint guardians from outside. In traffic there will be police. In schools, there will be teachers. Everywhere you see that there is a regulator. So here the practitioner and the regulator is the person himself. So yoga is an anushasanam. Can yoga lessen your disease? Yes, it can. It can give you health also. And why do you need that health? As I said, if you enjoy, then it becomes a bhogartha. But if you use the strength which is accrued from yogic practice for higher pursuits, then it becomes an apavargartha sadhana. We know the population of India. 125 crore is a figure which we hear often. So similarly, you have to understand that medically, our body is made up of 300 trillion cells. And each cell, or peshi bolte hai, that can be considered like an individual citizen. एक नागरिक कैसे होता है, वैसे
एक सेल फंक्शन करता है. And you know, when does an individual or a citizen get happy? When he gets more money, when he earns more, and that's natural. So for the cells, the wealth of the cellular system is this wealth. For the cellular system or an individual cell is the blood, because it carries all the nourishment to the body, and all the wastes which are created by the body, they are removed by the blood. So friends, blood distributes life all over and prana all over. So if you have blockage of the arteries affecting the limb, you get gangrene, which is common in diabetics. If your coronaries get occluded, you get heart attacks. If your brain vessels get occluded, you get a stroke. So, and the consequent dysfunctions. So the health of a body, holistic health, when every individual is happy or when every cell is happy, that can be possible or that can be achieved by increasing the blood supply. And that blood supply and that holistic health, because when an individual cell is happy, then the entire body will be happy. And how will it be happy? Because cells will make tissues, tissues will make organs, organs make various systems, and we are aware you have the respiratory system catering to श्वसन संस्था बोलते हैं उसको, breathing gaseous exchange and giving oxygen to all cells. The digestive system, the nervous system which acts for coordination, the musculoskeletal system which makes us move about here and there, the endocrine system. When all these systems are grouped into one and when they function together, then only holistic health is possible. Otherwise, you may have strong muscular men, muscles with strong and bulky muscles, bodybuilders, they have extremely weak minds, you know. Their tolerance is extremely weak. But you will see the tolerance of women is much more. So they are strong mentally. So you have to understand that it's a holistic health. So how is this health achieved? And here again, a concept of oneness comes. You see oneness, the same individual, the Jivatma, the part of the cosmic consciousness or Paramatma within us is called as Jivatma, and to unite with that is called as yoga. Yuja means to bind or to unite, and that's how we unite. Now the problem is you don't see the same universal principle residing in all, and that is what a yogi does. That's why so many asanas are given. Now I represent the Iyengar school of yoga. In medical science we have various super specialists. If I am a consultant physician, if you have an eye problem, you will go to an ophthalmologist. If you have a cardiac problem, you will go to a cardiologist. Now, BKS Iyengar, Yoganga Anushthanat Ashuddhikshay Jnanadipti Rav Viveke Khate. There are eight limbs. Now, of the 8 limbs, Guruji has specialized in asana and pranayam. So, how these asanas help? There are 84 lakhs of asanas. He has realized this and given it in a form of a beautiful sutra that the body is the bow, asana is the arrow, and in a perfect asana, the soul or target is struck. So in his experience, this is an experiential science. Asanas are a form of meditation and God realization. Now, all need not reach that goal. See, we have so many patients or people practicing cricket. How many become Tendulkar? How many become Virat Kohli? So 1 in a million. Manushyanam sahastreshu. So 1 amongst a million is going to be a yogi. So, though you may start asanas for health, it doesn't matter. Go on. If you realize God in that, well and good. But this is one of the important ways of holistic health, asana and pranayama. He has been a literal super specialist in this field. Now, this is not a subject of discussion. I will end my talk here by saying that asanas give holistic health, and how it has to be done, what is the skill, what is the precision, and the methodology will be given in the workshops. I thank you all for a patient listening, and I hope this movement continues. As Bruhad Yajnavalkya Smriti says, what is yoga? Yoga is Yogena Atma Darshanam. Great pleasure now to invite Jain Acharya Lokeshwar ji, जो योग पर 5 मिनट बोलेंगे.
मैं इस समय जैन योग के बारे में अति संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। भगवान महावीर ने मनोयोग, वचन योग और काया योग, इन 3 योगों की चर्चा की और उन्होंने मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, एक सन्यासी के लिए कहा गया, जैन सन्यासी के लिए, कि वह 8 प्रवचन माताओं की आराधना करे, 5 समिति और 3 गुप्ती की। जैन दर्शन में तपस्या को मुक्ति का मार्ग माना और ये कहा गया, तपसा कर्म विच्छेदाद आत्म निर्मल्यम निर्जरा। जिस तपस्या से आत्मा पवित्र बने, निर्मल बने, उज्जवल बने, स्वच्छ बने, कर्मों से मुक्त हो, वह तपस्या है। और उस तपस्या को भगवान ने 12 प्रकार से बांटा। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित्त, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये बड़ा साइंटिफिक क्रम है। प्रारंभ के 4 भेद केवल आहार से संबंधित है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग, क्योंकि उन्होंने इस सत्य को खोजा था कि जब तक आहार को नहीं समझोगे, तलहटी से लेकर के अध्यात्म के शिखर की यात्रा नहीं हो सकती। किंतु इन 12 भेदों को, प्रारंभिक 6 को बाह्य तप का और आंतरिक 6 आखिरी है, जिसके अंदर लास्ट में है ध्यान और कायोत्सर्ग। अगर आहार को नहीं समझा तो ध्यान भी नहीं कर सकते और योग कायोत्सर्ग भी नहीं कर सकते। और उसको कितना मूल्य दिया गया। गंडर गौतम पूछते हैं भगवान महावीर से कि बनते, ये अनुप्रेक्षा से, इस ध्यान से, इस योग से साधक क्या प्राप्ति करता है? महावीर कहते हैं, एक साधक अनुप्रेक्षा, ध्यान, योग करता हुआ एक समय में केवल एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकता है। और उन्होंने तुलना करते हुए ये कहा कि तराजू के एक पलड़े के अंदर 3 दिन का उपवास और एक और जो है सिर्फ 3 मिनट का ध्यान योग जो है वह ताकत है इस योग की कर्मों को नष्ट करने के संदर्भ में। बंधुओं और बहनों, मैं अत्यंत क्लिष्ट गहरे विषय में नहीं ले जाना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे ऋषि मुनियों ने यह भी कहा आत्मशुद्धि साधनम धर्म है, और साथ साथ में यह भी कहा कि जब तक अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम ध्यान और योग भी नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। हालांकि ध्यान और योग का केवल शरीर तक कहना बहुत उसका प्रारंभिक विश्लेषण होगा। मूलतः तो जैसा पातंजलि योग दर्शन में कहा, चित्त वृत्ति निरोधो योग है। मेरे दीक्षा गुरु, जिनके कर कमलों से मुझे दीक्षित होने का अवसर मिला, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मनोनुशासनम और जैन योग, आचार्य तुलसी ने। और उन्हीं के यशस्वी उत्तराधिकारी जो मेरे शिक्षा गुरु आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा चित्त और मन, उस ग्रंथ के अंदर, हालांकि फ्राइड ने मन की चर्चा की, कार्ल गुस्ताव युंग ने उससे आगे साइक की चर्चा की, किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात की, हजारों वर्ष पूर्व जो कही, वह कही चित्त की निर्मलता की, चित्त की पवित्रता की। जब तक हमारी भावधारा निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, उज्जवल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, हम कितनी भी ड्रामेबाजियां करते जाएं, भगवान महावीर ने कहा सोई उज्जूय भूयष्ट धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जब तक सरलता, रिजुता और पवित्रता नहीं है, और बंधु और बहनों, वह केवल और केवल ध्यान और योग के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। आज हम सभी योग ऋषि जी के पावन प्रेरणा से ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन, और मैं अतीत में जो योग का कार्यक्रम जो यूएनओ में हुआ, सैकड़ों देशों ने समर्थन किया, मैं उस अतीत में नहीं जाना चाहूँगा, किंतु ये अवश्य कहना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर बीज वपन हुआ है, सभी संस्थानों को साथ लेकर के, सभी धर्मों को साथ लेकर के, निश्चित रूप से योग ऋषि जी के नेतृत्व के अंदर
पूरी दुनिया में योग की पताका फहराएगी और सारी मानव जाति उससे लाभान्वित होगी। बंधुओं और बहनों, यूनेस्को के संविधान कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर पैदा होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा कि इसी मस्तिष्क के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पाश्विक वृत्तियां जन्म लेती हैं। तो इसी मस्तिष्क के अंदर नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां मानवीय और दैविक वृत्तियां जागृत होती हैं। और उन मानवीय और दैविक वृत्तियों को जागृत करने का एकमात्र कोई उपाय है तो वह है ध्यान और योग। तो आइए हम सब मिलकर के इनके नेतृत्व के अंदर कदम से कदम मिलाते हुए सब साथ मिलकर के इस योग को पूरी दुनिया के अंदर लेकर के जाएं और भारत को पुनः जो है विश्व गुरु के रूप में, योग गुरु के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में हम सब जो है इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दें। मैं जैन धर्म की ओर से स्वामी जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस दिशा के अंदर जो भी कार्यक्रम बनेगा हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। May I request Shri Subodh Tiwari ji to share his views in short time. कैवल्यधाम योग संस्था जो 1924 में स्वामी केवल्यानंद जी ने स्थापित की थी, जो लोनावला में स्थित है, उसकी तरफ से मैं आप सभी लोगों को इस इंटरनेशनल योग फेस्टिवल पर बधाई देना चाहता हूं। मेरा बचपन वहीं पे गुजरा और जितने भी योग गुरु मिले उनसे जो कुछ सीख पाया, आखिर में मुझे यही सीख मिली जिसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक तन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख सब एक समान। धन्यवाद। थैंक यू। It is indeed a matter of pleasure for us to have Shri Mufti Shamum Kazmi ji with us in this crowd today. I welcome him here, sir. We would like to hear from you about science of yoga. जय हिंद। मैं स्वामी जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा अभी, जो कि एक नया शिवाला इस देश में बना दें। एक नया शिवाला इस देश में बना दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। पर्वत के यानी इतना ऊंचा हो वो शिवाला कि उसके कलश को आसमानों से मिला दें। और मैं ये सामत, ये क्षमता मैंने 2012 में स्वामी जी के आश्रम में एक बात कही थी कि स्वामी रामदेव जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ता है, शोषण बढ़ता है, तो वो मालिक कायनात जिसने हम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है, दुनिया का पहला ग्रंथ वेद और अंतिम ज्ञान कुरान, और दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर, उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। और स्वामी जी ने जो बात कही है, मैं ये बात वाकई कह सकता हूं, देश नहीं सारी दुनिया के लोगों के सामने ये बात कह रहा हूं कि स्वामी जी साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्हीं के अंदर ये क्षमता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो 2012 में 2010 में जिस आंदोलन की शुरुआत की थी स्वामी जी ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जुल्म की चट्टानों को पीछे हटते हुए देखा है। मेरी आंखों ने ये बातें देखी है। तो आज मैं स्वामी जी आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने अभी एक बात कही है कि अलग कुछ नहीं है। अगर अलग है तो वो छोटी सोच है। जैसे अभी आपने योग के बारे में कहा कि ये भी योग है, अगर जबान से अच्छे शब्द निकले वो भी योग है, अगर जबान से अच्छे शब्द ना निकले वो योग नहीं है। और योग क्या है? तो स्वामी जी से अगर योग को देखना है तो मैं महर्षि पतंजलि को तो श्रद्धांजलि देता हूं, मगर स्वामी जी महाराज ने इस योग को पुनर्जन्म दे करके सारी दुनिया के ऊपर एहसान किया है। और ये योग अगर आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो कहते कि ये योग है और मैं योगी हूं। इसलिए
कि हीरा की पहाड़ियों पे जाकर के वो योग करते थे, ध्यान करते थे और ईश्वर के बारे में सोचते थे और सोचते थे कि हे ईश्वर, इस दुनिया से मैं जुल्म को कैसे समाप्त करूं। आज वही काम स्वामी जी करते हैं और स्वामी जी के बारे में ये बात मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां मंच पे बैठे हुए लोग सारे बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत बढ़िया हैं, और बहुत अच्छे ना होते तो इस मंच पे पहुंचते ही नहीं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि उनका नजरिया क्या है, उनका सिद्धांत क्या है। जैसे अभी कहा कि हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर घर खुशहाल हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। इस दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई नौजवान ऐसा ना हो कि जिसका चेहरा गमों से मुरझा गया हो, बल्कि मैंने उन्हें देखा है, अपनी आंखों से देखा है, स्वयं उसका मैंने अनुभव किया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे चेहरों पर मुस्कान को ला दिया है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे बीमारों को खड़ा कर दिया है कि जो सोच नहीं सकते थे। तो आज मैं देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस योग के जरिए से जो अनेकता में एकता स्थापित हुई है, स्वामी जी महाराज ने जो सेकुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया है और जो पंथ निरपेक्षता की बात की है, वो सत्य है और उसमें सत्यता है। मगर बात क्या है? बात सिर्फ ये है कि स्वामी जी महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब पहले योग दिवस के मौके पर मैं आपके साथ बैठा आकर के, तो अलग अलग लोग बात कर रहे थे। हम अलग बात नहीं करते, किसी धर्म की बात नहीं करते, और धर्म अलग है ही नहीं। धर्म तो एक ही है जो एकता के लिए प्रेरित करता है, किसी की सेवा के लिए प्रेरित करता है, वो धर्म है। धर्म वो नहीं है जो हाथों में बंदूक उठा ले। और मैं ये बात कह सकता हूं, स्वामी जी महाराज, आप में ये सामर्थ है, आप में ये क्षमता है, आप दुनिया से आतंक को भी खत्म कर सकते हैं, आप नक्सलवाद को भी खत्म कर सकते हैं, आप अलगाववाद को भी खत्म कर सकते हैं। मुझे इसका पूरा भरोसा है। और सिर्फ वो ये चीज़ है कि हमें, जैसे आपने कहा कि भाई छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, यही चीज़ हम सुनते थे कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, रोज़ा कैसे रखना चाहिए, ये सारी जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भिन्नता आती है। हर आदमी कहता मैं तुमसे अच्छा हूँ, वो कहता मैं तुमसे अच्छा, और अच्छा वो है जिसे ईश्वर पसंद करता हो, और ईश्वर जिसे पसंद करता है वो स्वामी जी हमारे बीच में है। मैं ज़्यादा ना बात कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि स्वामी जी महाराज की लंबी उम्र हो, जितने हमारे स्वामी जी यहाँ बैठे हैं सबकी लंबी उम्र हो, और हम देश नहीं पूरी दुनिया से आतंकवाद को, अलगाववाद को, बेरोजगारी को ख़त्म कर सके, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ कि अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कर्टेन रेजिंग प्रोग्राम का मैं समझता हूं कि मेरे साथ सब लोग इसमें एकमत होंगे कि इससे सुंदर आगाज शायद नहीं हो सकता था। और इस मंच से, जिसमें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, हमारे परमार्थ के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद जी, बहन हंसा जयदेव जी, जिनकी पीढ़ियाँ योग की सेवा में लगी हुई हैं, आनंद भवनानी जी, लोकेश मुनि जी, सुबोध जी, और श्री S.K. मिश्रा जी, और हो सकता है एक आध भाई का नाम मैं न जानता हूं, लेकिन सब लोगों ने जिस रूप में अपने अपने तरीके से अपना संबोधन दिया, और योग की जो व्यापकता, विराटता और सर्वग्राह्यता है, उसको जिस रूप में स्थापित किया, उसको सारे को समेट करके स्वामी रामदेव जी ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। और मैं मुस्तकबिल की चादर को अकेले बुन नहीं सकता, तेरा ताना ज़रूरी है, मेरा बाना ज़रूरी है। यह है योग, और इसके पीछे एक ही चीज़ है,
हित और हित। तो मानवता के हित के लिए ऋषियों ने जो ये विद्या हमको दी है, मैं समझता हूँ कि ऐसे एम्बेसडर्स के माध्यम से और ऐसे सरताज के माध्यम से कि हमारा योगी प्रधानमंत्री को इस समय है, तो अगर अब भी योग नहीं पनपेगा और अब भी अगर नहीं सरसाएगा तो कब सरसाएगा। तो वो समय आ गया है और एक बेहतर कल के निर्माण के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के इस प्रयास को आगे चलाएंगे। आज से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत, अधिकृत शुरुआत और सुंदरतम शुरुआत हुई, उसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के प्रतीक हैं।